Hi everyone, welcome to the exercise 2 discussion of practice sheets of ratio proportion variation. First question. The will of a sick man stated that if his pregnant wife gave birth to a boy, then she should get 1/3 of his property and the child should get a remaining 2/3. लिख लेते हैं. Boy, mother. Mother should get 1/3, boy should get 2/3. On the other hand, if she gave birth to a girl child, then 2/3 should go to his wife and 1/3 should go to the child. If it's a girl, 1/3 should go to the girl and 2/3 should go to the mother. The sick man died after a few weeks. His wife delivered twins, a boy and a girl. How should the property be divided? Now, the key essence here is that you understand हो क्या रहा है. अब 3 हिस्सों में तो डिवाइड होगा नहीं प्रॉपर्टी. अब प्रॉपर्टी कितने हिस्सों में डिवाइड होगा यही नहीं पता मुझे, पर मुझे मरते हुए आदमी की एक बात पता है. He wished that the boy gets double of the mother and the mother gets double of the girl child. तो ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया जो हम सॉल्व करते आ रहे हैं कंपाउंडिंग रेशियोज का. That means the boy should get 4/7, mother should get 2/7 and girl should get 1/7 of the will. ऐसा कोई आंसर ऑप्शन दिख रहा है? Mother 2/7, son 4/7, daughter 1/7. That's the correct answer, though I don't think that's the correct way things should be done. Right? Just joking. Let's go to the next question. A sum of rupees 735 was divided between A, B and C. Had each of them received 25 rupees less, their shares would have been in the ratio 1:3:2. ऐसे क्वेश्चंस हमने क्लास शीट में भी किए हुए हैं, बट एनीवे, अगर तीनों के 25-25 रुपए कम हो जाते तो टोटल 75 रुपीज कम हो जाते. टोटल 75 रुपीज कम हो जाते और शेयर्स होते x 3x 2x. टोटल में से अगर 75 रुपीज कम करूँ तो हो जाता है 660. वो 660 रुपीज x 3x 2x इस रेशियो में बटे हैं. व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय C? तो C को मिला 2x आउट ऑफ 6x. दैट इज 1/3 ऑफ 660, 220. अगर 25 रुपए उसने छोड़ दिए तो, पर छोड़ेगा क्यों? अभी तो मिले हैं पैसे. तो द करेक्ट आंसर शुड बी 220 plus 25, that is 245. Answer option D. Next question. Now this question seems to be a very lengthy question, but let's be patient. 3 friends count the number of coins they have. They found that the ratio of total number of coins of 25 paise, 50 paise and rupee 1 is 11:6:13. They have 25 paise coins in some ratio, 50 paise coins in some ratio and 1 rupee coins in some ratio. Find the amount with second person. मुझे second person के पास जो amount है वो निकालना है. If they have money only in denominations of 25 paise, 50 paise, 1 rupees. इसके अलावा उनके पास कुछ पैसे नहीं है and total number of 25 paise coins with them is 132. Let us start. 3 friends, A, B, C. 3 types of coins: 25 paise coins, 50 paise coins, 1 rupee coins. For now I'll just write it like this. मुझे क्या पता है? टोटल नंबर ऑफ 25 पैसे coins with them is 132. 132 और 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपी कॉइन्स का रेशियो है 11:6:13. सो 11x 6x 13x. तो 11x 132 मतलब x12 मतलब
6 times 12, 72 50 paise coins, and 13 times 12, 156 1 rupee coins. They have 25 paise coins in the ratio 2:4:5. 2:4:5 ऐसा लिखने के बजाय 2 + 4 6 + 5 11, मतलब 2/11 ऑफ टोटल इसके पास होगा, 4/11 ऑफ टोटल इसके पास होगा, और 5/11 ऑफ टोटल इसके पास होगा. I hope you're able to exactly follow what I am doing, why I am doing it, how I am doing it. पर मुझे इन सब लोगों में इंटरेस्ट है ही नहीं. मेरा पूरा ध्यान सेकंड पर्सन पर होना चाहिए, because I need to find out the amount with the second person. So I'll just look at the ratios related to the second person, right? 50 पैसे coins किस रेशियो में है? 6:3:9. That means 3/18 और 1/6. 1/6 of 72 coins. 1 rupee coins किस रेशियो में है? 7:2:4. That means 2/13 of 156. So let's evaluate. 4/11 of 132. That figures out to be 48.25 paise coins, मतलब 12 rupees. 1/6 of 72 is 12, मतलब 12 50 paise coins, that is 6 rupees. 2/13 of 156 is 24, that means 24 1 rupee coins. So that's a total of 24 rupees. So that's 12 and 6, 18 and 24, 42 rupees. Answer option B, 42 rupees is the correct answer. अगर systematically आप solve करोगे questions, the questions are very easy. The chapter itself is very easy. Next question. A sum of 43 rupees was divided among 100 boys and girls. Each boy got 53 paise, each girl got 28 paise. Again, something which is very bad. But anyway, how many boys were there? अच्छा, हर लड़के को मिले 53 पैसे, हर लड़की को मिले 28 पैसे. तो let us say number of boys is B, number of girls is G. तो 53 पैसे पर बॉय, तो टोटल 53 B पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, 28 पैसे पर गर्ल, 28 G पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए. टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 43 रुपीज, विच इज 4300 पैसे. And total number of boys and girls are 100. So P plus G equals 100. But then linear equation in two variable में, I am sure you remember elimination वाला method, multiplying second equation with 28 so that I can eliminate number of girls because I need to find the number of boys. Subtracting 53 minus 28, 25B equals 43 minus 28, that is 1500. That's P equals 60. 60 is the correct answer. Answer option C. Next question. The price of a diamond is directly proportional to square of weight of diamond. Price is directly proportional to square of weight. Chantu, a diamond merchant, has a diamond in his hand which slips out of his hand and breaks into two pieces of 2 grams and 4 grams. If the decrease in price is 4500, first of all तो students को यही नहीं समझ में आता कि decrease क्यों हो रहा है price. So think about it. एक diamond था, very crude representation of a diamond, उसके दो टुकड़े हुए. एक टुकड़े का वेट था 2 ग्राम, एक का 4 ग्राम, तो टोटल वेट क्या रहा होगा? 6 ग्राम. तो पहले जो प्राइस रही होगी अनब्रोकन स्टोन की, PU इज इक्वल टू K इंटू W स्क्वायर, यानी कि 6 स्क्वायर, सो 36K.
पर टूटने के बाद फर्स्ट पार्ट की कीमत क्या रही होगी, k इंटू 2 स्क्वायर, और सेकेंड पार्ट की कीमत k इंटू 4 स्क्वायर, यानी कि 16k और 4k। तो टूटने के बाद जो वैल्यू है टोटल, दैट इज 4k प्लस 16k, यानी कि 20k। तो पहले प्राइस था 36k, अभी हो गया 20k, नुकसान हो गया। नुकसान कितने के बराबर है, 16k। कैसे आया, 36k माइनस 20k करके, इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4500 रुपीज। 16k इज इक्वल टू 4500। मुझे क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ ओरिजिनल प्राइस एंड रिड्यूस्ड प्राइस। ओरिजिनल प्राइस और रिड्यूस्ड प्राइस का सम, यानी कि 56k की वैल्यू मुझसे पूछी है। 56k इज इक्वल टू हाउ मच if 16k is equal to 4500. This is what we need to find out, right? You solve this, you'll get k is equal to 4500 over 16, so 56k is equal to 4500 over 16 times 56, which figures out to be 15,750. Answer option D is the correct answer. Next question. Anil, Bishan, Charan invested money in a business. Anil invested half of total capital for 6 months. Bishan invested 1/3 of total capital for 8 months. Charan invested rest of capital for 1 year. Ratio of their profits is half capital, 1/3 capital. बचा कितना, 1 माइनस हाफ माइनस 1/3, 1/6 कैपिटल। इस रेशो को ऐसे रखे देने के बजाय इट्स बेटर टू कन्वर्ट इट इनटू नेचुरल नंबर्स का रेशियो, जो कि हमको ज़्यादा आसान लगता है। कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम सभी नंबर्स में मल्टीप्लाई कर लो, राइट, सो दैट बिकम्स 3, 2, 1। अनिल का इन्वेस्टमेंट 6 मंथ्स का था, तो टाइम पीरियड 6 मंथ्स। बिशन का इन्वेस्टमेंट 8 मंथ्स का था, और चरण का इन्वेस्टमेंट 1 ईयर यानी कि 12 मंथ्स का था। तो प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो होना चाहिए, 3 टाइम्स 6 18, 2 टाइम्स 8 16 एंड 12, wherein I can cancel and it becomes 9 8 6. Any answer option which says that? Answer option C, the correct answer. Gaurav, Nitesh and Iqbal invested money in a business in the ratio 14:40:27. After 1 year, they want to revise their shares in the ratio 19:55:37. What is the change in Iqbal's share? इकबाल का शेयर पहले कितना है, 27/14 + 40 + 27, दैट इज 81। दैट मीन्स 1/3 है उसका शेयर पहले। बाद में उसका शेयर कितना हो गया, 19:55:37 में से 37, सो दैट्स 37/19 + 55 which is 74 and 37 which is 111, which is again 1/3. Essentially no change. Answer D. The score in the CAT paper drops in direct proportion to square root of number of mistakes made. फिर से ये वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने एक्सरसाइज में किया था, ट्रेन की स्पीड रिड्यूस होने वाला क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन। स्कोर में जो ड्रॉप है that is directly proportional to square root of number of mistakes made. If the score of a person is 80 when he has made no mistakes and 20 when he has made 25 mistakes, 80 से 20 मतलब ड्रॉप कितना हो गया, 60 is equal to k root 25, k is equal to 12, rewrite the equation as d is equal to 12 root n. What is the maximum number of mistakes possible to avoid a negative score? नेगेटिव स्कोर अवॉइड करना है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो सकता है, आई मीन कम से कम जीरो हो सकता है स्कोर। 80 से जीरो हो गया मतलब ड्रॉप कितने का हुआ, 80 का। सो आई पुट 80 इज इक्वल टू 12 root n and you solve that and you get
20 over 3 root n is equal to 400 by 9, that is 44.44. मतलब 44.44 मिस्टेक्स तक जा सकता है, पर 0.44 मिस्टेक थोड़ी कर सकता है कोई, या तो 44 मिस्टेक्स करेगा या 45 करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा स्कोर, नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब 44। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मिस्टेक्स कर सकता है? आंसर ऑप्शन बी, 44 मिस्टेक्स। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 persons PQR have to distribute a certain sum of money in the ratio 2:3:5, but they distributed it in the ratio 3:4:5. As a result, Q gets 30 rupees extra. What is the amount that they distributed? Q को कितना मिलना था? 3/10 of total, पर उसको उससे 30 रुपीज़ ज़्यादा मिल गए। क्यों? क्योंकि उसको जो शेयर मिला वो 4/12 ऑफ टोटल यानी कि 1/3 ऑफ टोटल था। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट t is equal to 900. A faster way to solving such questions is thinking in terms of percentage. See, this is 33.33%, 1/3, and this is 30%. 33.33% और 30% का डिफरेंस कितना है? 3.33%, और 3.33% कौन सा फ्रैक्शन है? 1/30। तो आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सारे केसेस में आप सीधे क्या लिख सकते हो? 33.33% माइनस 30%, यानी कि t का 1/30 इज इक्वल टू 30, एंड दैट्स हाउ आई गॉट माई आंसर, t इज इक्वल टू 900 सो फास्ट. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी, 900. Now a upon b is equal to 1/3, b upon c is equal to 2/1 and so on. बहुत सारे रेशियोज दिए हैं, मुझे क्या निकालने को बोला है? ABCD अपॉन EFGH का होल स्क्वायर्ड निकालने को बोला है। इन सब का कंपाउंड रेशियो निकालना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. दिस इज a considerably difficult question based on a very simple question asked in CAT 2006 once again. So how should we go about it? Notice a upon e लाने के लिए मैं a by b, b by c, c by d और d by e को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ टू गेट a by e, क्योंकि b b c c d d कैंसिल हो जाएगा. Now 1/3 upon 2/1 sorry 1/3 times 2/1 times 1/2 times 3/1. कोइंसिडेंटली ये भी कैंसिल हो जा रहा है एंड वी गेट a upon e is equal to 1. Let's also find b upon f like that. So I get b upon c times c upon d times d upon e times e upon f as b upon f. तो b upon f की वैल्यू क्या होगी? 2/1 times 1/2 times 3/1 times 1/4, and therefore I get b by f equals 3/4. Likewise, we calculate c by g. So that is c by d times d by e times e by f times f by g. आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है. I am just doing it so that you have great clarity in what I am doing. So that's 1/2 times 3/1 times 1/4 times 6/7. So that's 18/56, and you can cancel it out to get 9/28. So c by g equals 9/28. And likewise, let's also calculate d by h.
4/7. So now I can calculate ABCD upon EFGH square as A upon E into B upon F into C upon G into D upon H का squared. A upon E is 1 times B upon F is 3/4 times 9/28 times 4/7. 4 cancels 4. I am left with 27/196 का square. Now 27 square is 729 and 196 का square is 38416. So the answer A 729/38416. It was a lengthy question, but there are other ways to think about such questions also. एक तो अपने को बेसिक मेथड पता ही होना चाहिए, but also think about it. न्यूमरेटर ABCD वाले ही नंबर्स का प्रोडक्ट है और डिनोमिनेटर EFGH, मतलब इन्हीं नंबर्स के प्रोडक्ट्स हैं, और हमको जो निकालना है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. तो मैं सीधे इसको तो हटा ही सकता हूँ गिनती से, बिकॉज दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इन द न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर. नो परफेक्ट स्क्वायर एंड्स इन 8 एंड नो परफेक्ट स्क्वायर एंड्स इन 5 विथ 1 इन 10th डिजिट. 2 होना चाहिए था, 25 होना चाहिए था. हाँ, अब जो तीनों आंसर ऑप्शंस बचे हैं वो तीनों आंसर ऑप्शंस तो पॉसिबल है क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर्स हो सकते हैं. बट 961 तो 31 का स्क्वायर होता है. 31 प्राइम नंबर है. यहाँ पर कहीं पर भी 31 नहीं है. इसका मतलब 31 के यहाँ आने के चांसेस क्या ही है? नन एट ऑल. मतलब ये नहीं हो सकता. ऑल्सो 625 25 का स्क्वायर हो सकता है. 5 द प्राइम नंबर इज नोवेयर हियर. इसका मतलब आंसर ऑप्शन बी सी डी में से कुछ नहीं हो सकता, तो ए ही होगा. पर ऐसा दिमाग चलाने के लिए हमको बहुत अच्छे से स्क्वायर्स क्यूब्स वगैरह याद रहने चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड कि कितना फ़ायदा मिलता है अगर आपको ये सारी चीज़ें याद हो तो. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेशियो ऑफ A's salary and B's salary is 3:4. A gets 20% more, B gets 10% more. What will be the ratio of new salaries? ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं. लेट्स क्विकली डू दिस. यहाँ पर A की सैलरी में लेट्स से 300x और B की सैलरी में लेट्स से 400x में 20% और 10% का इंक्रीज है. 20% यानी कि 60x. सो ये वैल्यू बन जाएगा 360x और 400x में 10% यानी कि 40x. ये वैल्यू बन जाएगा 440x. सो द रेशियो ऑफ न्यू सैलरीज इज 9:11. आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अदरवाइज जो दूसरा तरीका मैंने तब यूज़ किया था वो भी कर सकते हैं. अभी उनकी सैलरीज का रेशियो 3:4. इसकी सैलरी 20% बढ़ जाएगी मतलब 1.2 टाइम्स हो जाएगी. इसकी सैलरी 10% बढ़ जाएगी मतलब 1.1 टाइम्स हो जाएगी. डेसिमल पॉइंट को हटा सकते हैं क्योंकि सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल. 4 cancels 12 thrice, you get 9/11 as the answer. Straightforward. Next question. 8 bananas and 6 apples cost a certain amount. ठीक है. The cost of a banana increases by 10% and the cost of an apple decreases by 10%. Then 8 bananas and 6 apples will cost the same. Let us say एक बनाना की कॉस्ट है B, तो 8 बनानास की कॉस्ट है 8B. एक एप्पल की कॉस्ट है A, तो 6 एप्पल्स की कॉस्ट है 6A. टोटल कॉस्ट 8B + 6A. मुझे क्या निकालना है? रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ बनाना एंड एप्पल, मतलब B/A की वैल्यू मुझे निकाल के बतानी है. अगर बनाना की कॉस्ट बढ़ जाए 10%, यानी कि बनाना की कॉस्ट हो जाए 1.1B, और
एप्पल की कॉस्ट घट जाए 10%, यानी कि कॉस्ट हो जाए 0.9 तो 8 बनाना इसकी कॉस्ट हो जाएगी 8 टाइम्स 1.1 और 6 एप्पल्स की कॉस्ट 6 टाइम्स 0.9 ये अभी भी बराबर होंगे. So that's 5.4, 6 minus 5.4, 0.6a equals 8.8 minus 8.8b. That's b over a equals 3 over 4. जो हमसे पूछा था आंसर ऑप्शन सी में दिया है. That's the correct answer. Finished. If a carton containing 20 mirrors is dropped, which of the following cannot be ratio of broken mirrors to unbroken mirrors? ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1 में किया था और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो रेशियो में नंबर्स हैं उनका सम 20 का फैक्टर होना चाहिए. सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 20, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 20, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 20, 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 20. तो आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए सही आंसर, क्योंकि दैट कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ ब्रोकन एंड अनब्रोकन मिरर्स. If x and y are both positive integers, what must be added to both the integers to make their ratio as 3:4? अच्छा, एक तरीका ये है कि मैं x और y दोनों में ये ऐड करके देख लूँ आंसर ऑप्शंस, और एक तरीका है कि x है y है, दोनों में ऐसा क्या मैं ऐड कर दूँ कि उनका रेशियो हो जाए 3/4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3x plus 3a equals I'm so sorry, 4x plus 4a equals 3y plus 3a. 4a minus 3a जो कि मुझे निकालना था equals 3y minus 4x. As simple as that. Is that given in any answer? Yes, B. That's the correct answer. A milkman has 100 liters of pure milk in a bowl. He has a coin which he is going to toss. If he gets heads, he will add 10 liters of milk to the bowl. If he gets tails, he will add 10 liters of water. He tosses the coin 3 times and gets heads twice. What is the ratio of milk to water in the bowl? Heads आने पर दूध मिलाता है 10 लीटर. 2 बार हेड आया मतलब 2 बार 10-10 लीटर दूध मिलाया, तो 100 लीटर प्लस 20 लीटर मिल्क कितना हो गया 120 लीटर. और एक बार टेल आया होगा 3 बार में से, तो 10 लीटर पानी मिला लिया होगा. तो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 12:1. आंसर ऑप्शन सी. बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं ये. आई होप यू अंडरस्टैंड, और ये क्वेश्चंस आपसे बने भी होंगे. रेशियो ऑफ अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी इज 3:4. रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर्स 4:5. ए अर्न्स 6,000, सेव्स 1/3 ऑफ इट. आधा तो काम ही अपना यहाँ खत्म हो गया भाई. ए बी इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स. A earns 6,000 and saves 1/3 of it, मतलब spends 4,000. ए और बी के अर्निंग्स का रेशियो है 3:4. अब सोचो ये 3 पार्ट्स होगा तो ये 4 पार्ट्स होगा. 3 इंटू वॉट इज 6,000? 2,000. तो 4 इंटू 2,000 ये वैल्यू क्या होनी चाहिए 8,000. एज सिंपल एज दैट. इसके लिए आपको लिखना नहीं चाहिए कुछ. यू शुड बी एबल टू डू दिस ऑन योर ओन लाइक दिस वेरी क्विकली. मतलब यू शुड नॉट बी डूइंग एनी स्टेप्स फॉर दिस. एक्सपेंडिचर्स का रेशियो है 4:5. 4 पार्ट्स 4,000 मतलब 1 पार्ट 1,000 मतलब 5 पार्ट्स 5,000. तो इसका खर्चा होगा 5,000. तो इसने सेव किया 3,000. क्या पूछा है रेशियो ऑफ सेविंग्स 2:3. आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A gives half of his candies to B. B will have 30% more candies than what he had earlier. A के पास कुछ कैंडीज हैं, B के पास कुछ कैंडीज हैं. A ने अपनी आधी कैंडीज अगर B को दे दी तो B के पास कितनी कैंडीज हो जाएंगी B + A/2. ये जो कैंडीज हैं ये उसके पास जितनी कैंडीज थी उससे 30% ज़्यादा है. सो जस्ट सब्ट्रैक्ट इट एंड यू गेट A is equal to
0.6b और a upon b equals 3/5. यही चीज हमसे पूछी थी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैंडीज विद a and b? 3/5 is the correct answer. Answer option A. Next question. Mr. Mahesh has to distribute certain money to A, B and C in the ratio 3:4:5. By mistake, he distributed the money in the ratio 4:5:6. B has how much amount in excess of his actual due? B की बात करनी है. B को पहले कितना मिलना चाहिए था? 4/12 मिलना चाहिए था, यानी कि 1/3 मिलना चाहिए था B को. उसको मिला कितना? 5/15, यानी कि उसको 1/3 ही मिला. 1/3 मिलना चाहिए था, 1/3 ही मिला उसको, कुछ भी एक्सेस में नहीं मिला. आंसर ऑप्शन बी. Set A contains 10 consecutive numbers starting from X. Set B contains 8 consecutive numbers, even numbers, 8 consecutive even numbers starting from Y. The ratio of average of set A elements to that of set B elements is 9:14. What is the ratio of X and Y? ठीक है. सेट A में 10 एलिमेंट्स हैं X से स्टार्ट होते हुए, यानी कि सेट A होगा X, X plus 1, X plus 2, X plus 3 and so on. I'll not write all the elements. Last element होगा X plus 9. B में जो एलिमेंट्स हैं वो Y से स्टार्ट होते हैं, पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं. तो 8वां नंबर होगा Y plus 14. नाउ x से लेके x plus 9, इन सब नंबर्स का जब आप एवरेज निकालोगे, आई एम श्योर यू कैन डू इट. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वाला फॉर्मूला लगा करके जब आप इसका एवरेज निकालोगे, यू विल गेट दैट द एवरेज ऑफ दीज इज 2x plus x plus 4.5. I'm so sorry, x plus 4.5 is the average. जबकि इस सेट ऑफ नंबर्स का जो एवरेज होगा वो होगा y plus 7. सो ये एवरेजेस का रेशियो 9:14 है, मतलब x plus 4.5 over y plus 7 equals 9/14. एक तरीका है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, आपको x upon y is equal to 9/14 आ जाएगा. पर दूसरा तरीका, अगर आपको साफ समझ आ रहा हो कि 4.5 और 7 खुद ही 9/14 के रेशियो में है, 9/14 के रेशियो वाले नंबर्स में क्या ऐड करने से 9/14 के ही रेशियो वाले नंबर्स आएंगे? वो नंबर्स जिनका खुद का रेशियो 9/14 हो. ये आपने एक कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, a upon b is equal to c upon d is equal to e upon f, then the sum of numerators upon sum of denominators का रेशियो सेम होगा. सो 4.5 और 7 का रेशियो 9:14 ही है, तो x by y का भी रेशियो 9:14 ही होना चाहिए. दैट्स द करेक्ट आंसर. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, देन यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वेरीफाई. आई विल जस्ट क्विकली शो इट टू यू. And that's why the answer is 9/14. In a paper of CAT, there are 3 sections. Each section होना चाहिए था. Each section contains 25 questions and each question carries 4 marks. Wrong answer carries 1 negative mark. No negative or positive marking for unattempted questions. Fair enough. A student attempted the questions from section A, B and C in the ratio 6:5:4. Number of correct answers are in the ratio 4:3:2 respectively. Student got 96 marks in section A. अच्छा, सोचने की बात है, 25 क्वेश्चंस होते हैं एक सेक्शन में और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, मतलब 100 मार्क्स टोटल. 100 मार्क्स टोटल में से 96 मार्क्स आए हैं उसके सेक्शन ए में. अगर वो 25 के 25 सही करे तो ही 100 आ सकते हैं.
24 सही करे तभी 96 आ सकते हैं, 24 सही एक गलत करे तो और कम हो जाएंगे मार्क्स। इसका मतलब इट एंश्योर्स दैट उसने सेक्शन ए में अटेम्प्ट जो किए क्वेश्चंस और राइट जो हुए क्वेश्चंस वो सेम होने चाहिए, 24 होने चाहिए, तभी उसका स्कोर 96 पॉसिबल है। अटेम्प्ट्स का रेशियो हमको दिया हुआ है 654, तो ये अगर 6 पार्ट्स है तो 6 4 ज़ा 24, 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16। इसका मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड 24 20 16 और नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स का रेशियो था 4:3:2। तो 4 पार्ट्स अगर 24 है तो 1 पार्ट 6, 3 6 is 18, 2 6 is 12। इसका मतलब 18 करेक्ट 12 करेक्ट, तो 18 करेक्ट 2 इनकरेक्ट, यानी कि 18 4 72 -1 71 मार्क्स इधर, एंड 12 करेक्ट 4 इनकरेक्ट, so 12 4 48 -4 44 marks in section C. How many marks will he get in section B? I'm so sorry, section B में मैंने एक सब्ट्रैक्ट कर दिया था। सेक्शन बी में आई जस्ट शो इट टू यू, 18 टाइम्स 4, 18 सही आंसर्स के और 2 गलत क्वेश्चंस के 2 मार्क्स, एक मार्क डिडक्ट हुआ तो 2 मार्क्स डिडक्ट हो गए, 72 -2 70 मार्क्स होना चाहिए था। सो आंसर ऑप्शन 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मार्क्स विल द स्टूडेंट गेट इन सेक्शन सी? ये भी निकाल के बैठे हैं हम। आंसर ऑप्शन ए। Robin and Robert have some money in the ratio 4:3. Robin gives P rupees to Robert. Now they have equal amounts of money. Robert spends Q rupees out of the total money he has. Now again the ratio is 4:3. Find the ratio P is to Q. Robin, Robert, 4x मान लो इसके पास था तो 3x इसके पास था, इसने P रुपीज़ इसको दे दिए तो इसके पास हुआ 4x माइनस P और इसके पास हुआ 3x प्लस P। इसमें से इसने Q रुपीज़ खर्च कर दिए तो इसके पास हुआ 3x प्लस P माइनस Q और इसके पास 4x माइनस P, और उनके पास जो रेशो, ये जो अमाउंट्स हैं ये 4:3 के रेशो में ही बचे। सो 4x माइनस P अपॉन 3x प्लस P माइनस Q इक्वल्स 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व, 12x माइनस 3P इक्वल्स 12x प्लस 4P माइनस Q, सॉरी माइनस 4Q। So I get 12x cancels off and I get 7P equals 4Q or P upon Q equals 4/7. That's the answer. Is that there in the answer options? Yes. Answer option C is the correct answer. Volume of a gas is directly proportional to temperature. Volume is directly proportional to temperature and inversely proportional to pressure. If the gas occupies 400 cubic feet volume, ठीक है, at some pressure, by what percentage does the pressure need to be increased so as to compress the gas into 4 cubic feet tank at constant temperature? टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट कर दिया मतलब वॉल्यूम और प्रेशर सीधे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। तो 400 इंटू इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू 4 इंटू फाइनल प्रेशर, तो फाइनल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू 100। 100 मतलब परसेंटेज टर्म्स में अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूं तो 10,000%। मतलब इनिशियल प्रेशर अगर
100% था तो फाइनल प्रेशर 100 गुना होना चाहिए, यानी कि 10,000% होना चाहिए। तो इंक्रीज कितने परसेंट का होना चाहिए? 9900% का इंक्रीज होना चाहिए। आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The volume of a gas is inversely proportional to pressure. Volume is inversely proportional to pressure and directly proportional to temperature which is in Kelvin. टेम्परेचर को केल्विन में रखना है, ठीक है। When the temperature is 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अब डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है? तो यहाँ दिया हुआ है टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 प्लस टी केल्विन। तो टी की जगह मैं 27 रख लूँ तो 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 27 डिग्री केल्विन। एक्चुअली केल्विन को डिग्री के साथ लिखा नहीं जाता, बट हाउ डज इट मैटर फॉर अस? सो दैट विल बी 300 केल्विन। तो ठीक है, जब टेम्परेचर था मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा ही नहीं 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं क्या पढ़ूंगा 300 केल्विन। प्रेशर 4 atm, अब वो जो भी होता हो atm यूनिट होगा। वॉल्यूम इज 200 क्यूबिक फीट। तो अब क्योंकि ऐसा केस है, मतलब मुझे पता है कि इनका रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सो आई कैन राइट v अपॉन टी बाई पी शुड बी कांस्टेंट और vp अपॉन टी शुड बी कांस्टेंट। दैट मीन्स v1 p1 अपॉन t1। आई होप यू रिकॉल दिस मेथड, वी डिड इट इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो। v2 p2 अपॉन t2। तो हमको क्या बताया, जब टेम्परेचर 300 केल्विन था, वॉल्यूम 200 क्यूबिक फीट था और प्रेशर 4 था। एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड, 127 डिग्री सेंटीग्रेड को पहले तो केल्विन में कन्वर्ट करूं। आई एम श्योर यू कैन कन्वर्ट इट नाउ। 273 प्लस 127 इज 400। सो जब टेम्परेचर 400 हो गया केल्विन, 8 atm प्रेशर हो गया, प्रेशर इज 8 atm। तो वॉल्यूम 2 क्या होगा, ऐसा आपने से पूछा है। सो 100 कैंसल्स 100, 4 कैंसल्स 8, ट्वाइस 2 कैंसल्स, v2 इज इक्वल टू 100 अपॉन 3, सॉरी 400 अपॉन 3, that is 133.33. Answer option C. Force of attraction between two bodies is directly proportional to product of masses, inversely proportional to square of distance between them. Already कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में, अगर याद हो। F इज इक्वल टू km1m2 अपॉन r स्क्वायर आया था। नहीं तो इस केस में भी कर सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। टू बॉडीज ए एंड बी विद सर्टेन मासेस वर एट ए सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। तो उनके बीच में जो फोर्स था, लेट अस से इनिशियल फोर्स Fi था। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज F। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज बॉडीज इज इंक्रीज्ड बाय 50%, व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन फोर्स? अगर न्यू फोर्स हमको निकालना है जहां पर मासेस तो सेम थे, डिस्टेंस 50% इंक्रीज हो गया। 50% इंक्रीज मतलब 3/2 r हो गया। सो दैट विल बी km1 m2। आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ स्टेप्स, आई होप यू डोंट डू सो मेनी स्टेप्स एवरी टाइम। 4/9 km1 m2 अपॉन r स्क्वायर। 4/9 हो गया, मतलब फाइनल फोर्स वॉज 4/9 टाइम्स इनिशियल फोर्स। डिक्रीज कितना हुआ? 5/9 पार्ट, यानी कि कितना परसेंट? 55.55%। आंसर ऑप्शन बी। इन अ कंटेनर देर आर 3 gases, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। The ratio of 3 gases by volume is 2:3:4, by weight is 7:6:1, density is defined as mass upon volume, ठीक है।
मास का रेशियो दिया है 761, वॉल्यूम का रेशियो दिया है 234, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का रेशियो निकालना है, डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन विल बी मास अपॉन वॉल्यूम। तो 7W 6W W लेट से अपॉन 2V 3V 4V, तो W अपॉन V तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मेक्स दिस 14, मेक्स दिस 8 एंड 1, 14:8:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? ये तो बहुत ही आसान है, हमने तो पूरा ही निकाल दिया, हमें सिर्फ क्या यूज करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। 1:8 इज द करेक्ट आंसर। The salary of a call center employee is 5,000 rupees per month and incentives are proportional to the number of calls he attempts. In January, he attempts 450 calls and earns an amount, salary plus incentives, of 6125. मतलब इंसेंटिव कितना हुआ, 1125, 450 कॉल्स पर 1125 इंसेंटिव मिला, तो पर कॉल इंसेंटिव, क्योंकि इंसेंटिव वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कॉल्स, so C is equal to Ki, or in other words C upon I is constant. That's why I can straight away say per call incentive के बारे में बात कर सकता हूँ। So 1125 रुपीज इंसेंटिव मिला जब 450 कॉल्स किए, ही विशेस टू अर्न 7500, मतलब 2500 रुपये का इंसेंटिव चाहिए उसको, तो 2500 रुपये के इंसेंटिव के लिए कितने कॉल्स करने पड़ेंगे? सो दैट बी 450 इंटू 2500 upon 1125. So when we cancel that, we get 125 times 9 and 125 times 20 here, and 9 cancels this 50 times, so 20 times 50, that is 1000 calls उसको करने पड़ेंगे। आंसर ऑप्शन बी। Mr. A has opened a shop to sell milk. Fixed cost, रेंट वगैरह सब कुछ 8,000 रुपये है। He purchases pure milk at 15 rupees per liter, adds water to that milk and sells it for 20 rupees per liter. ठीक है। He wants to sell pure milk without adding any water. How many liters he has to sell per month to get a profit of 3,000 rupees after removing fixed cost? Fixed cost है 8,000 रुपये, प्रॉफिट चाहिए 3,000, तो टोटल कमाना पड़ेगा 11,000 रुपये। 11,000 रुपये में कोई एडल्ट्रेशन करना नहीं चाहता, तो 11,000 रुपये में सिर्फ दूध बेचेगा, तो दूध ही दूध में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15 रुपीज़ से 20 रुपीज़, यानी कि 5 रुपये पर लीटर। तो 11,000 रुपये कमाने के लिए कितने लीटर्स बेचने पड़ेंगे, 2200 लीटर्स बेचने पड़ेंगे। आंसर ऑप्शन डी। Value of y varies with x according to y is equal to a plus bx plus cx square plus dx cube, where a, b, c, d are constants. Following table gives the values of y for different values of x. ठीक है, y is equal to x1 है, तो x1 पुट करके y की वैल्यू लिख लेता हूँ 4, a plus b plus c plus d। x2 पुट करके y की वैल्यू लिख लेता हूँ 15, a plus 2b plus 4c plus 8d। x3 और x4 पुट करके आगे की इक्वेशंस लिख लेता हूँ। This is the case of linear equations in 4 variables. Linear equation in 4 variables सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन का तरीका सबसे आसान होता है। आप इक्वेशन को नंबर दे देता हूँ मैं इक्वेशंस को। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। इजीएस्ट वे होगा 2 - 1 3 - 1
4 माइनस 1 कर लेना, उससे a कैंसिल हो जाएगा, आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगी बी सी डी में। फिर उसको फिर से एलिमिनेशन के मेथड से सॉल्व करोगे। जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे आपको आंसर्स आएंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1। सो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू पूछिए, आंसर होगा 4। नाउ टू द लास्ट क्वेश्चन, it's also based on the same set y is equal to a plus bx plus cx square plus dx cube जो हमने अभी सॉल्व किया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच y विल बिकम इक्वल टू 259। तो y की वैल्यू a b c d के टर्म्स में अगर मैं लिखूं तो a 1 था, मतलब यहाँ पर क्या हो गया 1, प्लस b भी 1 था तो ये 1 प्लस एक्स, c भी 1 था तो एक्स स्क्वायर और d भी 1 था तो एक्स क्यूब। मुझे क्या चाहिए, y होना चाहिए 259, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स 259। ये है वो इक्वेशन जो मुझे सॉल्व करनी है। इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। आप आंसर ऑप्शन सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बट उससे भी आसान अगर आपको पता हो कि इस रेंज में किस नंबर का क्यूब आता है। भाई 8 क्यूब होता है 512, तो वो होने से रहा। 7 क्यूब 343, वो होने से रहा। 5 क्यूब सिर्फ 125 होता है, 125 प्लस 25 प्लस 5 ये उस रेंज में नहीं पहुंचेगा। 6 क्यूब इस रेंज का है 216। तुरंत याद आ जाना चाहिए था आपको, आप चेक कर लो। दैट्स करेक्ट, आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। And that's the solution for exercise 2 of the practice sheet of ratio proportion variation. Thank you all very much for being very patient. I hope you could follow each and every solution. If you have any doubts, we can discuss it when in the doubts discussion video. Have a great day.